ಲಕ್ಷಕಂಠ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಉಡುಪಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಪಾದಂಗಳವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಲಕ್ಷಕಂಠ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮಾಪನಗೊಂಡಿತು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಪಾದಂಗಳವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನರೇಂದ್ರರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅರ್ಜುನ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗೀತಾ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವನಾಯಕ ಅರ್ಜುನ ಸ್ವರೂಪಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಸಾರಿದ್ದು, ದುಷ್ಟರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದುಷ್ಟರ ನಾಶವನ್ನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ವಾರಣಾಸಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನಂತೆ ಉಡುಪಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗಣೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಮುಂದಿಟ್ರು. ಜನ ಸಂಘದಿಂದ ಗೆದ್ದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪುರಸಭೆ ಉಡುಪಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಾನು 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಪರಮಾನಂದವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಕಂಠ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶ್ವವೇ ಭಾರತದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಗುಜರಾತದಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವಿಗ್ರಹವು ಹಿಂದೆ ಮಾತಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನದಿಂದ ತನಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಉಡುಪಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಜನಸಂಘದಿಂದ ಗೆದ್ದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪುರಸಭೆ ಉಡುಪಿ ಆಗಿದ್ದು, ದಿವಂಗತ ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲ ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ 5 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೇ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ಸಾರಲಾಗಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕಂಠಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಗಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗೀತಾಯಜ್ಞ ಯುವ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಧ್ವಜ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು, ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲು ದಿವಂಗತ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯಿದೆ. ಆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ 6 ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಡುಪಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಚೇತನಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭೋಜನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪುರಂದರ ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರಂಥ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರು ಲಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದು, ಯುವಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಆತಂಕವಾದಿ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನವಭಾರತಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇಶವಾಸಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ 9 ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬನನ್ನಾದರೂ ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಜಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಿ, ಸ್ವದೇಶಿ ಆಂದೋಲನದಿಂದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ, ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಯಶಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ, ಶ್ರೀ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿಹೊಳೆ, ಶ್ರೀ ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದಿ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಕೊಲ್ಯ.
वर्षानन्तरम् अत्र आगताः। तन्मध्ये राममन्दिरनिर्माणं कृत्वा आगताः। यथा श्रीरामः 14 वर्षानन्तरम् अयोध्यां प्रति आगतवान्, तद्वत् 14 वर्षानन्तरम् अस्माकं नरेन्द्रमहोदयः अत्र श्रीरामराज्यस्थापनार्थम् आगताः। गत पुत्तिगमठ पर्यायसमये 14 वर्षात् पूर्वं नरेन्द्र मोदी महोदयाः आगताः। तदनन्तरं द्वितीयवारं पुनः पुत्तिगमठ पर्यायसमये एव आगताः। कारणं पुत्तिगमठ पर्यायः इन्द्रपर्यायः। अष्टमठेषु इन्द्रनाम केवलं पुत्तिगमठस्य। अतः अहं सुगुणेन्द्रः, सुश्रीन्द्रः, उपेन्द्रः इति इन्द्रपरम्परा पर्यायः। तदर्थं नरेन्द्र मोदी महोदयाः आगताः पुत्तिगमठीयपर्याय इति कारणेन। अतः नरेन्द्र मोदी महोदयस्य विशेष अनुग्रहार्थं कृष्णस्य समीपे प्रार्थनां कुर्मः। राममन्दिर निर्माणसमर्पणं श्रीकृष्णसमीपे कृतवन्तः। सर्वं कृष्णमयं, सर्वं कृष्णार्पणं। कलियुगे कृष्णार्पणम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। अतः ध्वजस्थापनानन्तरं राममन्दिरनिर्माणं सम्पूर्णम् आसीत्। तदनन्तरं कृष्णार्पणार्थम् अत्र सुवर्णतीर्थमण्डप उद्घाटनार्थं च आगताः। स्वपर्याय इति पुत्तिगमठपर्यायसमये एव आगताः। तेषां बहु अभिनन्दनं कुर्मः। श्री नरेन्द्र मोदी महोदयाः भगवद्गीतायाः व्याख्यानं, भगवद्गीता सन्देशः यः वर्तते तस्य पूर्ण अनुष्ठानं नरेन्द्र मोदी महोदयेन कृतं वर्तते। श्रीकृष्णः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् इति सन्देशं दत्तवान्। अस्माकं नरेन्द्र मोदी महोदयः आत्मनिर्भर कार्यक्रमेण श्रीकृष्णसन्देशस्य अनुष्ठानं कृतवन्तः। श्रीकृष्णः निस्वार्थसेवां करोतु इति सन्देशं कृतवान्। अस्माकं नरेन्द्र मोदी महोदयः निस्वार्थसेवया गीतासन्देशं कृतवन्तः। अतः नरेन्द्र मोदी महोदयः भगवद्गीतायाः जीवद्व्याख्यानम् इति वयं भावयामः। अतः एतादृशकोटिगीतालेखनयज्ञे लक्षकण्ठगीता समर्पणसमये अर्जुनस्य आगम इव नरेन्द्र मोदी महोदयस्य आगमः आसीत् इति महान् सन्तोषः। श्रीकृष्णः गीतायां धर्मस्य रक्षणम् आवश्यकं, धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तादृशसन्देशं नरेन्द्र मोदी महोदयः निष्पक्षपातरूपेण सज्जनानां रक्षणं, दुष्टानां शिक्षणं च कुर्वन् वर्तते। अतः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः विशेषरूपेण भवतु। धर्मद्वारा जगद्रक्षणं विश्वनायकस्य भवतु इति वयम् आशास्महे। अस्माकं पर्यायः विश्वगीतापर्यायः। विश्वगीतापर्याये विश्वनायकः आगतः इति सार्थकम् इति अस्माकम् आशयः वर्तते। तादृश नरेन्द्र मोदी महोदयद्वारा धर्मरक्षणं भवतु इति अस्माभिः प्रार्थना क्रियते। शास्त्रे धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः, धर्मः, देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति अस्माकं भावना। तादृश अनुग्रहः, श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः भवतु इति प्रार्थनां कृत्वा नरेन्द्र मोदी महोदयस्य अस्मिन् दिवसे श्रीकृष्ण अनुग्रह रूपेण एकं प्रशस्तिं वयं ददामः। भारत भाग्यविधाता, भारत भाग्यविधाता।
अस्माकं नरेन्द्रमहोदयः भारतभाग्यविधाता इति बिरुदसमर्पणेन विशेष श्रीकृष्णानुग्रहं वयं प्रार्थयामः। अस्मिन् सन्दर्भे उडुपी क्षेत्रस्यापि अभिवृद्धिः भवतु। यथा वाराणसी कारिडार् आसीत्, एवं उडुपी कारिडार् अपि भवतु। श्रीकृष्णस्य क्षेत्रस्य अभिवृद्धिः भवतु इति वयम् आशास्महे। एवं गोपालकृष्णस्य सेवार्थं गोवंशरक्षणमपि नरेन्द्रमोदी द्वारा भवतु इति वयम् आशास्य पुनरपि भारतभाग्यविधात्रोः श्रीकृष्णानुग्रहं सम्प्रार्थ्य वयं विरमामः। कहा जाता है मैं उससे योग्य बनूं और ज्यादा काम करूं और मुझसे जो अपेक्षाएं हैं उसे मैं पूर्ण करूं। भाइयों बहनों, अभी 3 दिन पहले ही मैं गीता की गुरु धरती कुरुक्षेत्र में था। अब आज भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी के यश की इस भूमि पर आना मेरे लिए परम संतोष का अवसर है। आज के इस अवसर पर जब 1 लाख लोगों ने एक साथ भगवत गीता के श्लोक पढ़े तो पूरे विश्व के लोगों ने भारत की सहस्त्र वर्षों की दिव्यता का साक्षात दर्शन भी किया। इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए श्री श्री सुगुणेन्द्र तीर्थ स्वामी जी, श्री श्री सुशील तीर्थ स्वामी जी, कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, उडुपी के अष्टमठों के सभी अनुयायी, उपस्थित अन्य संतगण, देवी और सज्जनों, कर्नाटका की इस भूमि पर यहां के स्नेही जनों के बीच आना मेरे लिए सदा ही एक अलग अनुभूति होती है और उडुपी की धरती पर आना तो हमेशा अद्भुत होता है। मेरा जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात और उडुपी के बीच एक गहरा और विशेष संबंध रहा। मान्यता है कि यहां स्थापित भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा पहले द्वारका में माता रुक्मणी करती थी, बाद में जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी ने इस प्रतिमा को यहां पर स्थापित किया। और आप तो जानते हैं, अभी पिछले ही वर्ष मैं समुद्र के भीतर श्री द्वारका जी का दर्शन करने गया था, वहां से भी आशीर्वाद ले आया। आप खुद समझ सकते हैं कि मुझे इस प्रतिमा के दर्शन करके क्या अनुभूति हुई होगी। इस दर्शन ने मुझे एक आत्मीय आध्यात्मिक आनंद दिया। साथियों, उडुपी आना मेरे लिए एक और वजह से विशेष होता है। उडुपी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की मॉडल की कर्मभूमि रही है। 1968 में
उडुपी के लोगों ने जनसंघ के हमारे वीएस आचार्य जी को यहाँ की नगरपालिका परिषद में विजयी बनाया था। और इसके साथ ही उडुपी ने एक नए गवर्नेंस मॉडल की नींव भी रखी थी। आज हम स्वच्छता के जिस अभियान को राष्ट्रीय रूप देख रहे हैं, उसे उडुपी ने 5 दशक पहले अपनाया था। जल आपूर्ति और ड्रेनेज सिस्टम का एक नया मॉडल देना हो, उडुपी ने ही 70 के दशक में इन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। आज ये अभियान देश के राष्ट्रीय विकास का राष्ट्रीय प्राथमिकता का हिस्सा बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। साथियों, रामचरितमानस में लिखा है, कलिजुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावही भवत आहा। अर्थात कलयुग में केवल भगवत नाम और लीला का कीर्तन ही परम साधन है। उसके गायन कीर्तन से भव सागर से मुक्ति हो जाती है। हमारे समाज में मंत्रों का, गीता के श्लोकों का पाठ तो शताब्दियों से हो रहा है, पर जब 1 लाख कंठ एक स्वर में इन श्लोकों का ऐसा उच्चारण करते हैं, जब इतने सारे लोग गीता जैसे पुण्य ग्रंथ का पाठ करते हैं, जब ऐसे दैवीय शब्द एक स्थान पर एक साथ गूंजते हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एक नया स्पंदन, एक नई शक्ति देती है। यही ऊर्जा अध्यात्म की शक्ति की है। यही ऊर्जा सामाजिक एकता की शक्ति है। इसलिए आज लक्ष्य कंठ गीता का ये अवसर एक विशाल ऊर्जा पिंड को अनुभव करने का अवसर बन गया है। ये विश्व को सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की शक्ति भी दिखा रहा है। साथियों, आज के दिन विशेष रूप से मैं परम पूज्य श्री श्री सुगुणेन्द्र तीर्थ स्वामी जी को प्रणाम करता हूं। उन्होंने लक्ष्य कंठ गीता के इस विचार को इतने दिव्य रूप में साकार किया। पूरे विश्व में लोगों को अपने हाथ से गीता लिखने का विचार देकर उन्होंने जिस कोटि गीता लेखन यज्ञ की शुरुआत की है, वो अभियान सनातन परंपरा का एक वैश्विक जन आंदोलन है। जिस तरह से हमारा युवा भगवत गीता के भावों से, इसकी शिक्षाओं से जुड़ रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। सदियों से भारत में वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की परंपरा रही और ये कार्यक्रम भी इसी परंपरा का भगवत गीता से अगली पीढ़ी को जोड़ने का एक सार्थक प्रयास बन गया है। साथियों, यहां आने से 3 दिन पहले
मैं अयोध्या में भी था। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के पावन दिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है। अयोध्या से उडुपी तक असंख्य राम भक्त इस दिव्यतम और भव्यतम उत्सव के साक्षी बने। राम मंदिर आंदोलन में उडुपी की भूमिका कितनी बड़ी है, सारा देश इसे जानता है। परम पूज्य स्वर्गीय विश्वेश्वर स्वामी जी ने दशकों पहले राम मंदिर के पूरे आंदोलन को जो दिशा दी, ध्वजारोहण समारोह उसी योगदान की सिद्धि का पर्व बना है। उडुपी के लिए राम मंदिर का निर्माण एक और कारण से विशेष है। नए मंदिर में जगत गुरु मध्वाचार्य जी के नाम पर एक विशाल द्वार भी बनाया गया। भगवान राम के अनन्य भक्त जगत गुरु मध्वाचार्य जी ने लिखा था, रामाय शाश्वत सुविस्तृत षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्य महारणावाय। अर्थात भगवान श्री राम 6 दिव्य गुणों से विभूषित सर्वेश्वर और अपार शक्ति साहस के सागर है। और इसलिए राम मंदिर परिसर का एक द्वार उनके नाम पर होना उडुपी, कर्नाटका और पूरे देश के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। साथियों, जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी भारत के द्वैत दर्शन के प्रणेता और वेदांत के प्रकाश स्तंभ है। उनके द्वारा बनाई गई उडुपी के अष्ट मठों की व्यवस्था संस्थाओं और नव परंपराओं के निर्माण का मूर्त उदाहरण है। यहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, वेदांत का ज्ञान है और हजारों लोगों की अन्न सेवा का संकल्प है। एक तरह से ये स्थान ज्ञान, भक्ति और सेवा का संगम तीर्थ है। साथियों, जिस काल में जगत गुरु मध्वाचार्य का जन्म हुआ, उस काल में भारत बहुत सी आंतरिक और बाहर की चुनौतियों से जूझ रहा है। उस काल में उन्होंने भक्ति का वो मार्ग दिखाया जिससे समाज का हर वर्ग, हर मान्यता जुड़ सकते हैं। और इसी मार्गदर्शन के कारण आज कई शताब्दियों के बाद भी उनके द्वारा स्थापित मठ प्रतिदिन लाखों लोगों की सेवा का कार्य कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा के कारण द्वैत परंपरा में ऐसी कई विभूतियां जन्मी हैं जिन्होंने सदा धर्म, सेवा और समाज निर्माण का काम आगे बढ़ाया। और जन सेवा की ये शाश्वत परंपरा ही उडुपी की सबसे बड़ी धरोहर है। साथियों, जगत गुरु मध्वाचार्य की परंपरा ने ही हरिदास परंपरा को ऊर्जा दी।
पुरंदरदास, कनकदास जैसे महापुरुषों ने भक्ति को सरल और सुगम कन्नड़ा भाषा में जन जन तक पहुंचाया। उनकी ये रचनाएं हर मन तक, गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंची और उन्हें धर्म से, सनातन विचारों से जोड़ा। ये रचनाएं आज की पीढ़ी में भी वैसी की वैसी ही है। आज भी हमारे नौजवान सोशल मीडिया की रील्स में श्री पुरंदरदास द्वारा रचित चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती सुनकर एक अलग भाव में पहुंच जाते हैं। आज भी जब उडुपी में मेरे जैसा कोई भक्त एक छोटी सी खिड़की से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है तो उसे कनकदास जी की भक्ति से जुड़ने का अवसर मिलता है। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं, मुझे इसके पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। कनकदास जी को नमन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, उनकी शिक्षा हर युग में व्यवहारिक है। गीता के शब्द सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, राष्ट्र की नीति को भी दिशा देते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सर्वभूत हिते रताः ये बात कही है। गीता में ही कहा गया है, लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। इन दोनों ही श्लोकों का अर्थ यही है कि हम लोक कल्याण के लिए काम करें। अपने पूरे जीवन में जगत गुरु मध्वाचार्य जी ने इन्हीं भावों को लेकर भारत की एकता को सशक्त किया। साथियों, आज सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा है। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं और उसी ज्ञान की प्रेरणा से देश नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय करता है। श्री कृष्ण हमें सबके कल्याण की बात सिखाते हैं और यही बात वैक्सीन मैत्री, सोलर अलायंस और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीतियों का आधार बनती है। साथियों, श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया और भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीन से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर देगा।